गुड मॉर्निंग। आज के हम अपने इस वीडियो में देखेंगे आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी क्या है, ये लिबरलिज्म और किस टाइप से इसका ओरिजिन हुआ है और मेनली क्या इसके एलिमेंट्स हैं, क्या फीचर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली इट्स फर्स्ट पार्ट इज एज अ ओरिजिन एंड डेफिनेशंस। लेट्स सी। द वर्ड लिबरल इज derived from the Latin word liber, which means also a derivative of liber, the freedom or liberty. Liberal also denotes generosity or open mindedness. Thus, we find that freedom is always associated with the word liberal. सो अगर हम देखें कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इस लिबरलिज्म का ओरिजिन लिबरल वर्ड लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है फ्री मैन, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। Enlightenment philosopher John Locke has a major contributing for shaping liberal ideas. Basically, he is known as the father of liberalism and he contributes in liberalism. इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा माना जाता है और इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। Now let's see its rise and growth of liberalism. The collapse of feudalism is an important cause of the origin of liberal. बेसिकली फ्यूडलिज्म उस एरिया को कहा जाता था, एरा को, जब सर्फ और स्लैब्स होते थे, सर्फ और लॉर्ड्स होते थे। ये दो डिफरेंसेस हुआ करते थे, जिस तरह से कैपिटलिज्म में बुर्जुआसीज और प्रोलेटेरिएट होते हैं। इन द फ्यूडल पीरियड द फ्यूडल लॉर्ड्स practically controlled the economy and politics along with the church, and its fall opened the advent of capitalism and emergence of the middle class, which aspired to have a positive role in politics. The capitalists supplied the finance for the management of state, and the middle class supplied executives and administrators. तो क्या होता है कि जैसे फ्यूडलिज्म होता है ख़त्म, उसके बाद आता है ये लिबरलिज्म। देन जब ये लिबरलिज्म आता है, देन इसी के साथ ही साथ कैपिटलिज्म का भी उद्भव होता है। Slowly but steadily, these two classes captured the power of the state and wanted to impose restrictions upon the government. That is the reason behind arose liberalism in embryonic form. Two major events of the second half of the 18th century helped the emergence of liberalism. These two events are Declaration of American Independence in 1776 and the Declaration of the Right of Man in 1789. बेसिकली जो लिबरलिज्म है, इसका उद्भव दो और रीज़न से बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है, जिनके कारण जो ये दो इवेंट थे जिनसे कि लिबरलिज्म आइडियोलॉजी आई। देन वन इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस, जो दो मेन फोकस था, एक ह्यूमन राइट पे था और दूसरा ह्यूमन राइट की इंडिपेंडेंस पे था। बोथ दीज इवेंट फर्दर द प्रोग्रेस ऑफ लिबरलिज्म। इन दोनों इवेंट्स के साथ ही लिबरलिज्म में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। And liberal theories and principles had been developed during the previous 300 years. In its earliest form, liberalism was a political doctrine. Behind the birth of liberalism, there was a very important role of John Locke. John Locke, by many, is regarded as the father of modern nationalism. It attacked absolutism and feudal privilege, instead advocating constitutional and later representative government. Then another thinker is Tom Paine. Tom Paine was another figure whose thought symbolizes the idea and spirit of liberalism. कई सारे thinkers थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, and mainly they are called as the liberal thinkers, in which there are another thinkers are Thomas Hobbes and Adam Smith, J.S. Mill, associated with this ideology. Now let's see the another part of this. Basically these are the elements and characteristics of liberalism. जब हम इनके एलिमेंट्स और करेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे तो हमें पूरा लिबरलिज्म क्या है और किस तरह से है, ये हमें पूरा समझ आ जाएगा इसमें। सो मेनली इट्स एलिमेंट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म। इट मेनली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड रैशनलिज्म। यहाँ इसका इंडिविजुअलिज्म एंड रैशनलिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग को रैशनल मानते हैं और इनका मानना है कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स are individual, they are free, they can take any decision by themselves. Second point is promote democratic values and freedom.
ये डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रमोट करता है और मेनली इसका जो फोकस है वो फ्रीडम पे है। थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फोर्थ फीचर इज दिस फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड एंड कैपिटलिज्म। इसका क्या होता है कि ये फोकस करता है कि फ्री मार्केट की मार्केट किसी भी कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, कोई फ्री उस पर कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, मार्केट फ्री होना चाहिए, कोई भी वहाँ पे सेल बाय अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकता है, कोई कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए एज लाइक एंड कैपिटलिज्म। These classic liberalism basically focuses on the capitalism. प्राइवेट ऑनरशिप होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, देर इज ऑल प्राइवेट ऑनरशिप, लिमिटेड गवर्नमेंट, just want to that night government as like a night watchman. There is no authoritative government on us, so human being as a rational, they can take their decision by themselves. हमने देखा कि जैसे एलिमेंट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म। अब इसके हम अनदर पार्ट में देखेंगे कि जो था इसके फेजेस को, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन दिस वीडियो दिस इज़ इनफ, सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।